Hello everyone. As we are done with the graphs, basic graphs, so we must know the importance of graph, at least in physics or like the science subjects that you do. Graphs basically provide us three important conclusions. Number one, you should be able to read the graph. By doing that, you are able to identify the variation of a physical quantity with time, with position, or with some other variable, right? First is reading the graph. Second, that we have already done, finding the slope of the graph. So most of the time, slope of a particular graph provides you some important information. For example, the slope of xt graph, right? Delta x by delta t gives you velocity. Slope of vt graph, delta v by delta t gives you acceleration, right? This way, a number of graphs provide you different physical quantities as their slope. Third one that we are going to focus today on is its area. So the area of graph also provides one important conclusion, one important physical quantity at number of times. For example, आप सब जानते हैं velocity into time is displacement, right? So if I take velocity versus time graph, the area provides me displacement. That we have already done in deriving the equations, right? जो आपने 3 basic equations derive की थी, उसमें आपने ये basic concept use किया था. So आज मैं बिल्कुल basic से लेके चलूँगा कि ग्राफ का area क्या provide करता है और उसे किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, which would ultimately lead us towards integration. So today's topic basically would be integration. देखिए ज़रा ध्यान से, suppose आप एक ग्राफ बनाते हैं velocity versus time का, ठीक है? आप बनाते हैं velocity versus time और ये एक ऐसा straight line ग्राफ है जिसमें this value is u and this value is t. Now somebody asks you, what does the area of this graph provide and how would you find this? So every one of us knows this is a sort of a rectangle. What is the area of a rectangle? Area basically becomes equal to u into t. U basically is velocity and t is time. Now we know in physics velocity into time is displacement. So the area ultimately provides me displacement. राइट, इट प्रोवाइड्स मी डिस्प्लेसमेंट. तो सोचो एरिया फाइंड करते हुए आपने किया क्या? आपने जो फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकल एक्सिस पर थी और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर थी बेसिकली उनका मल्टीप्लिकेशन किया. तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल पार्ट से उठा के आपको समझाया. आप जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स ग्राफ तक चले जाओ, दिस थिंग रिमेन्स वैलिड. व्हाट? The area of a graph basically provides the physical quantity that you obtain by the product of physical quantity on vertical and physical quantity on horizontal axis. ठीक है, जैसे ये था. अब एक और ग्राफ कंसिडर कर लेता हूँ which I know you would be able to solve. I take acceleration here, acceleration and time here, right? Let me make it a triangular graph. This becomes a straight line and the area that I want to find is basically the area of a triangle. Now let this value be a and this be t. I write it as time. Got that? Look at it carefully. मैंने आपको acceleration versus time graph provide किया which is a straight line. That means I have taken example of a variable acceleration. So that actually doesn't matter for us right now. It's a straight line. I want to find the area. So this is what I want to find. आपको इस बात से मतलब होना चाहिए, क्या आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना आता है? जी बिल्कुल आता है. दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. सो द एरिया इन दिस केस बिकम्स हाफ बेस इनटू हाइट. सो दैट इज हाफ ऑफ ए इनटू टी. दैट्स ओके. आ गया एरिया, बिकॉज ये सब आपने 10th में सीखा हुआ है कैसे इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट डज दिस एरिया प्रोवाइड? As I told you, this area is going to provide the physical quantity that we obtain by the product of these two physical quantities. उसके लिए when I ask you, जहाँ आप बैठे हैं आप try करें आंसर करने का, acceleration into time आपको क्या provide करता है? तो my experience says most of the times kids say, sir, velocity. They directly jump up on velocity. But my dear, look at the first equation. What does it say? First equation says v minus u is equal to at. It's not velocity, it is change in velocity. So be watchful and answer with the help of this equation that the area of AD graph is not velocity, it is change in velocity. ठीक है, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं. तो जैसे velocity time graph के एरिया से displacement मिलती है surely,
वैसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। और ध्यान रहे, आप अब जानते हैं एवरी ग्राफ हैज अ पर्टिकुलर इक्वेशन एसोसिएटेड विद इट। तो यहां पर ए टी के लिए बेसिकली आपको v माइनस यू मिल जाता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, ये सब जो सिंपल पार्ट मैं आपको करवाता हूं ना, दिस इज टू बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट so that when we move on to a complex part, वहाँ पे आप at ease feel करें कि अच्छा क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, चल कोई बात नहीं, जैसा मर्जी एरिया है, what is it gonna provide आप बता पाएंगे। अब मैं मूव ऑन करता हूँ जो हमें आज पढ़ना है। अगर मैं आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा पैराबोलिक प्रोवाइड करूं, आपने पढ़ा पैराबोलिक कल, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ प्रोवाइड करूं तो क्या आपको इसका एरिया फाइंड करना आता है? आई नो द ऑब्वियस आंसर इज नो, बिकॉज यू हैव नॉट डन इट एज येट। सो आई विल टीच यू हाउ टू गो फॉर दैट। सी, if it were a rectangle, if it were a triangle, if it were a square, if it were a hexagon, those kind of figures you know how to find area of. When this kind of a continuous curve is there, what we do is, ध्यान से देखना आप लोग, we consider a very small time interval delta t here. So because यहाँ पर horizontal axis पे time है, so I told a time interval delta t. Had it been x, I would say delta x. Had it been v, I would say delta v. So basically आपको यहाँ पर एक छोटा सा interval consider करना है इस particular physical quantity का. So here it is time, so I go for delta t. Now delta t tends to be 0. Be watchful. delta t इतना छोटा है कि ये लगभग 0 है. पर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? Why am I doing so? Just see carefully. ये वाला जो पार्ट है, इधर दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना देता हूँ। सपोज मैंने इसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया इस पार्ट को, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ये वाला। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वेरिएशन है। मैं इसे एक रेक्टेंगल कंसिडर नहीं कर सकता, कब तक? जब तक मैं टाइम इंटरवल को अप्रॉक्सीमेटली 0 ना कंसिडर कर लूं, क्योंकि अदरवाइज यहां पर इस तरह से एक वेरिएशन देखने को मिलेगी। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आई नो अगर ये समझ नहीं आया तो पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आएगा। प्लीज बी वॉचफुल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। सो एज आई चेंज द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। व्हाट आई नीड टू डू इज I need to consider a very small time interval, so small that for this time interval velocity can be considered constant. So this is something which you must write. What we consider a very small time interval delta t such that डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0। इसका मतलब मेरे सब बच्चे जानते हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। वाई? सो दैट, ध्यान देना, सो दैट, स्टार मार्क कर दें आप यहां पे, सो दैट वेलोसिटी मे बी कंसिडर्ड, आई एम सेइंग may be considered constant फॉर डेल्टा टी। ठीक है, वैसे तो ये वेरी कर रहा है पर इसको इतना छोटा कर दिया कि इसके लिए वेलोसिटी की वेरिएशन को नेग्लेक्ट किया जा सके और वेलोसिटी को कांस्टेंट ट्रीट कर सके। वो समझाने के लिए मैंने इस पार्ट को यहां मैग्नीफाई करके बनाया। सपोज 10 टाइम्स मैग्नीफाई किया तो वो दिखा रहा है कि यार ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। अब सोचो, अब मैं फिर वापस यहां चला जाऊं, इसका 1/10 चला जाऊं, अब तो ये लगभग कांस्टेंट नजर आ रहा है ना। So that is what I mean. आप डेल्टा टी को जितना उसके स्मॉल कंसिडर करें so that velocity may be treated constant. I hope अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा, लिखवा भी दिया मैंने आपको। So this is V. Now this shaded area can easily be calculated because this now is a rectangle. लिखे जरा, we can easily find the shaded area. कितना बन गया शेडेड एरिया? दैट इज इक्वल टू v into delta t. V into delta t because we can treat it as a rectangle now. V into delta t. But now what?
ये तो एक बहुत छोटे से पार्ट का एरिया निकला, मुझे तो सारा एरिया निकालना था। कहाँ से कहाँ? सपोज इस 0 से लेकर और इस टाइम t तक निकालना था, यहाँ से यहाँ तक। सो माय डियर, इन दैट केस मुझे 0 से लेके t तक ऐसे बहुत सारे वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे और उन सब का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो लिखिए ज़रा, लिखिए शाबाश। टू कैलकुलेट total area, to calculate total area from 0 to t, from 0 to t, we need to consider very large number of such time intervals. Need to consider very large number of such time intervals. When I say such, very very small time intervals, and add area of all such elements, all such elements. ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बनाई इसे मैं एलिमेंट बोल रहा हूं। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स यहां बन जाएंगे उन सब का एरिया मुझे ऐड करना होगा। एंड आई होप 10th में आप समेशन पढ़ के आए हैं। व्हाट इज समेशन? देखें, सो फॉर मी टोटल एरिया बेसिकली बिकम्स इक्वल टू summation of this area, that is v delta t. समेशन का मतलब है v डेल्टा टी की फॉर्म में जितने भी ऐसे छोटे छोटे ये एरिया एलिमेंट्स बनेंगे उन सबको मैं ऐड करूंगा, और जब ऐड करते हैं तो दैट इज शोन बाय द सिंबल समेशन। सो समेशन ऑफ v डेल्टा टी, राइट? ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये चीज तब तो वैलिड होती है जब चीजें अलग अलग दिखाई दें, लाइक एक एरिया एलिमेंट दूसरे एरिया एलिमेंट से अलग आइडेंटिफाई हो सके। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, जब एक एरिया एलिमेंट दूसरे एरिया एलिमेंट से एक्चुअली अलग आइडेंटिफाई किया जा सके, यहां पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज द वेरिएशन इज कॉन्टिन्यूअस, variation is continuous and we are considering delta to be very very small, microscopically small. So हमारे लिए possible नहीं है practically ऐसे छोटे छोटे time intervals को make out करना। ये तो हमने conceptually लिख दिया। अब जब इस चीज को solve करते हैं तो मुझे एक limit डालनी पड़ रही है। So I'll write like this. This is equal to, there is a limit. What kind of a limit? That delta t tends to be 0. I have to use a limit that delta t tends to be 0. जैसे ही मैं ये बोलता हूं, this gets converted into integration v dt. कहां से कहां तक? From 0 to t. From 0 to t. ये आपके लिए एकदम नया है। जैसे याद करो, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो पहली क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी कि ये कैसे आ गया एकदम से डेल्टा का सिंबल डी में कन्वर्ट किया था कि नहीं किया था? व्हाट वाज दैट? व्हेन यू कंसीडर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम और वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो उसको हम फिर अल्टीमेटली डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे थे। ऐसे यहाँ पे समझिए, मैथ्स के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस कर्व का एरिया फाइंड करने का तरीका ऐसे निकाला गया हो, राइट? एक कॉन्टिन्यूअस कर्व, जब तक ये स्ट्रेट लाइन है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एरिया फाइंड करने का स्ट्रेट अवे मेथड होता है। बट इस केस में क्या करना पड़ता है आपको? ऐसे एलिमेंट्स बनाने पड़ते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब जब ऐसे सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करने जाते हैं तो आपको एक लिमिट यूज करनी पड़ती है, दैट डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0, विच शोज कि ये प्रैक्टिकली अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। सो उसका मैथ्स ने सॉल्यूशन दिया कि अच्छा भाई, जब ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो उसे ऐसे उठा के लिख दो, v delta t summation limit delta t tends to be 0 can directly be written as v dt 0 to t. ठीक है, इसे अब आप, मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप इसे एक बार दो बार जितनी बार सुनना चाहे सुन के इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ठीक है भाई, सर ने बता दिया। अब अगर मुझे इस तरह के ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द वे आउट फॉर मी? द वे आउट इज, आपको सीधा ये वाली फिजिकल क्वांटिटी v है, इधर t है, आपको v dt ऐसे एक सिंबल डालना पड़ेगा जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन, राइट?
This is symbol of integration. I'll explain now in today's class what integration stands for. And from 0 to t, इसने क्या प्रोवाइड किया? इसने मुझे प्रोवाइड किया एरिया. सो ये चीज़ मुझे समझाती है कि मैं इंटीग्रेशन यूज़ क्यों करूं. मैं इंटीग्रेशन यूज़ करूंगा एरिया फाइंड करने के लिए एक कर्व्ड ग्राफ का. बस ये इतना ही ईजी है. सो आप एक लाइन लिख दीजिए. हेंस integration is a mathematical tool. Integration is a mathematical tool used to find area under a graph. Used to find area under a graph. Fine. मैं यहाँ एक चीज़ फिर रिपीट करता हूँ. देखो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको साथ साथ लिखना है, मैं उनके अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ. जिनको लगता है कि ये तो बड़ा ही स्लो हो गया, तो आप जब वीडियो सुनेंगे तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए. So it will become comfortable for you, right? So let's move further. अब मुझे इतना समझ में आ चुका है कि इंटीग्रेशन क्यों और इंटीग्रेशन क्या है. ये एक मैथमेटिकल टूल है जो एरिया फाइंड करने में मेरी हेल्प करने वाला है. कैसे? अगर AT ग्राफ है और वहां पर इंटीग्रेशन हुआ तो क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी. अगर VT ग्राफ है और इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. तो ये भी एक बार लिख लें. राइट डाउन स्टार मार्क करके लिखिए. Integration of velocity over time. Integration of velocity over time. So I'll write this as integration of velocity over time gives displacement. Gives displacement. जो मैंने समझाया, एरिया फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं. याद रखो इंटीग्रेशन एरिया से आया है, एरिया में मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन में भी मल्टीप्लाई होता है. इंटीग्रेशन से वो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जो मल्टीप्लिकेशन से मिलती है. सो वेलोसिटी टाइम के मल्टीप्लिकेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है. सो वी dt का ओवरऑल इंटीग्रेशन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली आपने AT पढ़ा, फिर लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ acceleration over time gives change in velocity. So ये कॉन्सेप्ट है मेरी तरफ से. अब मैं इसको एक जनरल ग्राफ लेके समझाता हूं. सपोज कीजिए मैं वैसे ही इन जनरल यहां पर एक क्वांटिटी P लिख देता हूं और यहां पर क्वांटिटी Q लिख देता हूं. ठीक है? This is P, I don't know what it is, this is Q again, and there is a graph like this. So what I read from here is P जो है वो Q पर नॉन लीनियरली डिपेंड कर रहा है. पहला कंक्लूजन क्या बनता है? P is proportional to Q की पावर n where n is not equal to 1 surely. नॉन लीनियरली डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है? सेकेंड, मैं ये देख पा रहा हूं Q इंक्रीज कर रहा है तो P बढ़ रहा है. व्हाट अबाउट द स्लोप? लुक एट इट. स्लोप इज इंक्रीजिंग. सेकेंड, स्लोप इज इंक्रीजिंग. राइट? इट इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग. पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग. नाउ थर्ड थिंग, अच्छा एक और चीज, स्लोप से मिलेगा क्या? स्लोप प्रोवाइड्स मी द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय डेल्टा P बाय डेल्टा Q. यानी इनके डिवीजन से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो मुझे स्लोप से मिलने वाली है. जैसे अगर आप xt ग्राफ यूज करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, अगर आप vt ग्राफ यूज करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है. और थर्ड चीज जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला, आप रीड कर सकते हैं एरिया वो कौन प्रोवाइड करेगा? एरिया प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन. और स्लोप में जरूरत पड़ेगी तो आप क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन. स्लोप में डिफरेंशिएशन यूज होगा और एरिया में इंटीग्रेशन यूज होगा. और माय डियर, एरिया हमें मल्टीप्लिकेशन वाली चीज बताएगा, यानी P मल्टीप्लाइड बाय Q मीन्स it is going to provide that physical quantity which is obtained by the product of these two. So ये मैंने आपको क्रक्स बता दिया, जितना कुछ अभी तक मैंने आपको समझाया कि अगर एक ग्राफ का एरिया फाइंड कर रहे हो तो दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो. एरिया इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट फिजिकल क्वांटिटी which is given by the product of these two, and slope is by the division. So slope provides me that physical quantity which is obtained by division. इसके लिए मैं एक और फिजिक्स का एग्जाम्पल लेता हूं जो आप समझ पाएंगे. क्या आप सभी न्यूटन्स लॉ जानते हैं?
न्यूटन्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। मैं पहले आपको समझाता हूं कि हम लोग जानते हैं फोर्स जो होती है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, मान लीजिए ये आपको पता है, राइट? अब अगर यहां इस नॉलेज के बेस पे ग्राफ स्टडी करना हो तो मैं देखना इधर बना देता हूं। अगर मुझे ग्राफ आया फोर्स वर्सेस टाइम का, ध्यान देना, अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आ गया, कोई भी अजीब सी शेप आ गई, ऐसे आ गया फिर ऐसे बन गया, व्हाटएवर, इस ग्राफ से क्या मैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकता हूं? उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा फोर्स टाइम और मोमेंटम का रिलेशन तो होता है, कैसे निकलता है? डेल्टा पी बिकम्स इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ओहो, I come to know that if I multiply force with time, that's going to give me change in momentum. So that is what I'm going to use here. Force versus time का जो एक ग्राफ बना, इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो उस एरिया से मुझे वो क्वांटिटी मिल जाएगी जो इनके प्रोडक्ट से मिलती है, और वो फिजिक्स में क्या है? दैट इज चेंज इन मोमेंटम, जिसको लेटर ऑन हम इम्पल्स बोलेंगे। तो अभी तो आपके समझने के लिए मैंने बताया। ऐसे ही सपोज करो हमें ग्राफ मिला होता P versus T का, P stands for momentum and T stands for time. I hope you are able to see it still. Momentum and time. Momentum time का ग्राफ मिला, सपोज मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ग्राफ अजीब सा ऐसे चला गया। इस ग्राफ से आपको फोर्स निकालने के लिए कहा जाता है। Now you know force is delta P by delta T. That means यहाँ पर जो चीज़ स्लोप है वो फोर्स है। So slope of this, इसका जो स्लोप होगा, slope will provide me force because delta p by delta t is force, और यहां पर area will provide me change in momentum. So ऐसे फिजिक्स में जितनी मर्जी फिजिक्स पढ़ते जाओ, जितने मर्जी नए फॉर्मूलाज आते जाएं, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इजीली उनको कोरिलेट कर पाएंगे। फाइन, तो ये एक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एरिया, कॉन्टिन्यूस कर्व, एरिया बाय इंटीग्रेशन। Graph basically provides three things: read how it is, slope by differentiation, then area by integration, right? Fine.